ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਦਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸਾਰ ਹੀ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਡ ਪਾਰਕਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਡ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਮੇਅਰ ਰਵੀਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ जीरो काल होगा जिससे पेड पार्किंग मसले ते चर्चा की जाएगी। आप पूछ के देखिए, किसी भी काउंसलर से पूछ के देखिए। एफएनसीसी में 3 महीने पहले जो बैठक हुई थी, एफएनसीसी फाइनेंस कॉन्ट्रैक्ट कमेटी, उसके एडमिन अप्रूवल 3-3, 4-4 महीने बाद जाके दी एडमिन अप्रूवल। क्यों कि फाइनेंशियल क्रंच है, अभी देखेंगे, अभी सोचेंगे। हालांकि वो मीटिंग में कहा गया था कि इसके मिनट्स पास होने की भी आवश्यकता नहीं है, इन कामों को तुरंत शुरू किया जाए। ये कहते हैं ना कि दिखाने के कुछ और करने के कुछ और है। ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, जनता समझ चुकी है। पानी के बिल की बात थी, पानी के रेट की बात थी। आप देखें, अगर सही मायने में लोगों को ये सहूलियत देना चाहते थे, आराम देना चाहते थे, तो वो पानी के रेट जो है वो राहत देना चाहते थे, वो पूरी तरह से जो है वो वापस लेने चाहिए थे। वो सिर्फ मार्च तक क्यों रोक लगाई? ये सर इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव आ गए। जब भी चुनाव आते हैं, भाजपा छाती पीट पीट के कहती है कि हमने ये किया, हमने वो किया, और धरातल पे आप चले जाइए, किसी गांव में चले जाइए, 100 करोड़ की बात कर रहे हैं, किसी गांव की गली में चले जाइए, किसी गांव की सड़क में चले जाइए, वो देखने लायक नहीं है। 3 साल से ये मर्ज कर चुके हैं गाँव को अपने साथ। आखिर कर क्या रही है सरकार? ये फेल हो चुकी है। देखिए, वहाँ पर बात 1 महीना पहले बैठक में डिसाइड हुआ था कि पार्किंग में इतना बड़ा जो है वो इशू है, कहीं भी स्मार्ट नहीं है पार्किंग। तब कहा गया था कि रिपोर्ट जो है वो इस हाउस मीटिंग में रखी जाएगी। क्या लोगों का पैसा जो नाजायज़ तौर पे लिया जा रहा है उस बारे में सरकार कुछ नहीं सोचना चाहती? वो रिपोर्ट ही धरातल पे नहीं रखी गई और हम 0 आवर में बोल कर चले जाएं, चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हो, इसका क्या फ़ायदा? ऊपर से सुनाई भी नहीं, सुन भी नहीं रहे हैं और ठीक तरह से मान सम्मान का भी ध्यान नहीं रखते हैं। ऐसी शब्दावली जो है वो यूज़ की जा रही है। तो अगर ऐसी बात है तो भाजपा पूरी तरह से बौखला गई है। बिल्कुल फेलियर है उनका, और वो अपना फेलियर जो है उसी को हजम नहीं कर पा रही है। जिस मेयर ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦੇਖੋ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਸਾਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇ। ਇੰਨਾ ਗਲਤ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਜਦੋਂ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਪੂਰਾ ਏਜੰਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਰੇਟ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਕੀ ਹਾਊਸ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਊਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ ਆ, ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਚੁਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਫਿਸਰਸ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਆ ਕਿ ਮੈਡਮ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਵੱਛਤਾ ਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਕਿ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਕਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਕਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 35 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਪਾਰੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ MC ਆਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ MOU ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ MOU ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੇਅਰ ਰਵੀਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਥ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਰੇਲ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸ਼ੈੱਡ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਹੰਗਾਮਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੇਅਰ ਰਵੀਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ सोमवार तो होगी। उसमें सोल्यूशन ये है कि धोबी घाट के लिए पॉलिसी बनानी थी जो अभी तक नहीं बनी है, कि हमें उनसे जब उनको अलॉटमेंट किए थे, एडमिनिस्ट्रेशन के पास था, तो 4 रुपये या 5 रुपये उनको जो एक रेंट के रूप में लेते थे। आज की डेट में वो भी नहीं दे रहे। हम अपना पैसा खर्च के उनको रेनोवेट करके दे रहे हैं, उनसे चार्जेस जो लेने हैं वो तय करने हैं। वो हमने इसमें बोल दिया कि अभी आज जो है इसमें वो चार्जेस उनका अगले हाउस में एजेंडा लेके कि हम क्या उनसे चार्जेस लेने हैं
वो करके उनको रेनोवेशन करके दें ताकि सफाई वहाँ पे रहे। 22 सेक्टर का अगर आप धोबी घाट देखेंगे वहाँ कितना कीचड़, मतलब वो जो ड्रेनेज वाटर है वो भी बाहर नहीं जा पाता, सारी वाटर लॉगिंग। साथ में स्कूल है, वहाँ बच्चे चलो अभी कोरोना की वजह से नहीं आ रहे हैं, मगर वो वहाँ पे कुछ भी बीमारी फैल सकती है, महामारी फैल सकती है। तो इसके लिए ये एजेंडा भी आज पास किया। देखिए, जहाँ तक पैसों की बात है, मैंने पहले भी बोला था कॉरपोरेशन के पास पैसों की कमी नहीं है। आज ही मैंने सदन में भी बताया कि फाइनेंस कमेटी की जो मीटिंग थी उसमें परसों ही तय हुआ है, तो उसमें हमारा जो बजट 502 करोड़ हमें मिला था, अभी वो 700 करोड़ तक हमें मिलेगा। 200 करोड़ हमें और मिल रहा है। तो हमें पैसों की कोई कमी नहीं है, किसी कॉन्ट्रैक्टर के किसी की कोई पेमेंट पेंडिंग नहीं है। शहर के विकास के सारे काम चल रहे हैं, तो उसमें कहीं पे भी पैसों की कोई कमी नहीं है। वो तो हम हर साल ही ऐसे, पिछली बार भी यही पास किया था कि कोविड का प्रोटोकॉल को, कोविड की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए कि थर्ड वेव आती है तो उस हिसाब से वो उसी में एक हम पैसा जो लगना होता है उसको पास कर देते हैं। बट अभी नई जब वो हाउस आएगा जनवरी के बाद, तो उसमें जनवरी में रिव्यू होगा, सारा क्या करना है क्या नहीं करना वो तय होगा, उसी हिसाब से होगा। देखिए, मैंने, आप सारे मीडिया के लोग वहाँ थे, मैंने कोई ऐसी भाषा का कोई यूज़ किया तो आप भी मुझे बता दें। वो सतीश कैन जी वहाँ पे खड़े होके आरोप लगा रहे थे भ्रष्टाचार के, तो मैंने उनको एक ही बात कही कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। आपने जो किया है वो शहर की जनता के सामने है। कोई बात है आप बताइए ना, उसको करिए हाउस में डिस्कस। आप इस तरह से हो हल्ला हंगामा कर रहे हैं, और उनसे तो मैंने कोई ऐसी बात ही नहीं करी जो कह रहे हैं कि आप उनकी पार्षद जो आरोप लगा रही है, कौन सी भाषा का मैंने यूज़ करा वो बता दें। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਏਜੰਡੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਲਈ ਭਗਵਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।